ਹੈਲੋ। ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕਰਾਂ? 2 ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ। 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ 12 ਵਜੇ ਕਰ ਲਈ, 1 ਵਜੇ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਵੀ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਮੋਹ ਲਾ ਦੇ, 3 ਦਿਨ ਦਾ ਮੋਹ ਲਾ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਵੀ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਆਹ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਓ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਭਰਾ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਬਣ ਮੇਰਾ, ਭਾਈ ਬਣ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਤਾਰੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਆਂ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਵਾਓ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, 2 ਦਿਨ ਕੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ से डिमांड करो फिर। ਚਲੋ ਭਾਈ ਬਣ, ਨਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਤ ਕਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਤ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੀ ਦਿਲ 5 ਲੱਖ ਦਾ 6 ਲੱਖ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਰ ਗਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਾ ਭਰਾ ਬਣ। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ ਬਣ, ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਾ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਮੈਂ ਲੋੜ ਬਤਾਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਬਣ ਗੱਲ ਕਰਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਖਪਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਲੋਚਾਂ ਕੋਲ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਬਲੋਚ? ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਮਾ ਭਰਾ ਲੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਲੋਚ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤੇ। नहीं तू नहीं जा, तेरे यार दूसरे, कुछ ही नहीं बनना भाई। पैसा पैसा बोलता है, कुछ नहीं बनेगा पैसे। यार तू मेरे नाल गल करना ना, मैं तेनू पहले दिन भी आख्या सी ना मैं पुलिस कोल जाना, ना मैं किसी बलोच नू जानना, ना मैनू पता है मेरी गल तेरे नाल, और मैं तेरे फोन दा इंतजार यकीन कर इन्ने दिन करदा रहा। पुलिस कुछ नहीं कर सकता, 2 दिन के बाद पहले डील कर फिर गल करावांगा। चलो गल करा दे, डील हो जाएगी तेरी मेरी गल करा। नहीं कराऊंगी। चार दिहाइयाँ मतलब 40 साल। सिंध में 40 साल से डाकू जराइम की दुनिया बसाए हुए हैं। हजारों लोगों को डाकुओं ने अगवा किया, कत्ल किया और रिहाई के बदले भारी तावान वसूल किया। पुलिस राय के मुताबिक गुज़िश्ता 30 बरसों में मजमूई तौर पर सिंध पुलिस ने डाकुओं के खिलाफ 5000 से जायद इंटेलिजेंस ऑपरेशन और सर्च एंड स्वीप ऑपरेशंस किए हैं। 2024 में सिंध पुलिस ने कच्चे के इलाके में 729 टारगेटेड इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जबकि 261 सर्च एंड स्वीप ऑपरेशन किए। इसके अलावा सिंध पुलिस और सिंध रेंजर्स ने 133 मुश्तरका ऑपरेशंस किए, जिनमें 582 डाकुओं को गिरफ्तार किया गया, जबकि 149 डाकू हलाक हुए। 2025 में मजमूई तौर पर 677 ऑपरेशंस किए गए, जिनमें 12 डाकू हलाक हुए और 72 डाकुओं ने सरेंडर किया। 2026 में सिंध हुकूमत डाकुओं के खिलाफ एक ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान कर चुकी है और ओबाड़ो में 5 डाकुओं को एक मुकाबले में हलाक किया गया है। वी नीड टू फॉर्म अ जॉइंट फोर्स जिसमें पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस और रेंजर्स की मुश्तरका एक ये नहीं कि केस बाय केस वो टीम तश्कील हो, इट शुड बी अ परमानेंट फीचर
اور اس میں دونوں صوبوں کی اور فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے رینجرز جب تک ایک جوائنٹ فورس بنا کر پرماننٹلی اراؤنڈ دا کلاک اس کے اوپر کام نہیں کریں گے، لوگوں کو ڈائریکٹلی ہٹ نہیں کریں گے. کچھ ٹرائبز ایسی ہیں وچ آر نوٹوریس، اینڈ جب بھی کوئی کڈنیپنگ فار رینسم ہوتی ہے تو اس ٹرائب کے پولیس دین از پریشرائزڈ اور ان کے اوپر ایک بڑی فورسلی وہ جا کر اس ٹرائب میں سے ان کے لوگوں کو اٹھا کے لاتی ہے تاکہ ایکسچینج آف پریزنرز ہو جائے، ایکسچینج آف کڈنیپیز ہو جائے. کئی مرتبہ دیر ہو جاتی ہے، لیکن الحمدللہ ابھی تک کوئی ایسا کڈنیپ وکٹم نہیں تھا جو کہ ہم نے پیروی کر کے جس کو واپس ابھی تک ہم نہیں لے کے آئے. حالیہ جو ٹارگیٹڈ آپریشن ہوا جو مسافروں کی بازیابی میں، اس میں رینجرز جو ہے وہ کا کافی کردار تھا، وہ ساتھ تھی. مین جو ہے وہ صفحہ اول پہ پولیس اور اس کے بعد رینجرز ان کی معاونت میں تھی. پولیس نے کافی جو ہے اس میں کارروائی کی، خاص طور پر ڈرون کارروائی سے اب تک جو ہے پولیس کو کامیابی حاصل ہوئی ہے. لیکن اس کا توڑ ابھی تک ڈاکوؤں کے پاس ہے. ڈاکوؤں کے پاس بھی بڑا جدید اسلحہ ہے. سوال یہ ہے کہ وہ جدید اسلحہ جو ہے وہ آتا کہاں سے ہے؟ دریائی راستے سے آتا ہے یا موٹر وے سے آتا ہے یا نیشنل ہائی وے سے آتا ہے؟ اس چیز کو بھی کافی حد تک دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کارروائی میں اب تک چونکہ ڈرون ٹیکنالوجی ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے، ان کو وہ بے بس ہو چکے ہیں اس میں، ورنہ ان لوگوں نے ہر چیز کا توڑ نکالا ہوا تھا. ایون یہاں تک کہ گزشتہ کچھ سال پہلے ہیلی کاپٹر سے شیلنگ کی گئی تھی تو پھر انہوں نے اینٹی ایئر کرافٹ جو ہے گن وہ کر لیے تھے، اور چین APC جب لے کر جاتے تھے تو ڈاکو مارٹر گولے کا استعمال کرتے تھے. تو ابھی اس بار بھی جو ہے وہ پولیس نے اپنے طور پر مارٹر گولوں کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے. اور خاص طور پہ یہ جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے یہ اس کا جو ہے، کیونکہ جو ڈرون بہت اوپر ہوتا ہے وہ نظر بھی نہیں آتا، اچانک سے جو ہے وہ بم نیچے آ کر گرتا ہے اور پھٹ جاتا ہے، جس سے جو ہے وہ کافی وہ ابھی مطلب خاموشی ہے. لیکن ابھی تک بڑے بڑے جو ہے جو نامور جن کے اشتہار پولیس نے شائع کیے تھے وہ ابھی تک پولیس گرفتار نہیں کر سکی. صدقہ سے کوئٹہ جانے والے بس پہ ڈکیورس نے اٹیک کیا تھا، حملہ کیا تھا، اور کوئی 2 درجن بندے اغوا کیے تھے. کچھ لوگوں کو تو انہوں نے راستے میں چھوڑ دیا تھا، کچھ کو وہ لے کر جا رہے تھے. تو سکر ریجن کی پولیس جو ہے نا ساری حرکت میں آ گئی. تو انہوں نے ایک بڑا آپریشن کیا سندھ رینجرز کے ساتھ، ڈرون سے اٹیک وغیرہ کیے. یہ جو صدقہ آباد کے علاقے میں آتے ہیں، مونگور علاقے میں جو 2 بڑے مشہور کچے کے ایریاز ہیں، کچا کراچی اور سون میانی، تو وہاں پہ انہوں نے جو یرغمالی والی تھے، نہ صرف جو بس والے تھے ان کو بھی بازیاب کروایا، بلکہ پہلے سے اغوا شدہ جو 3 بندے تھے صدقہ آباد کے ان کو بھی انہوں نے بازیاب کروایا. اور پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ 10 سے زیادہ ڈاکو بھی اس آپریشن میں مارے گئے. اس موسم میں دریا میں پانی کا بہاؤ کم ہوتا ہے، زیادہ تر کچا پانی سے خالی ہوتا ہے، تو پولیس کی جو موومنٹ ہے وہاں پہ زیادہ آسان ہوتی ہے. وہاں پہ ان کے وہیکلز جا سکتے ہیں، بختر بند گاڑیاں جا سکتی ہیں، تو فزیکلی ان کا وہاں پہ جانا آسان ہوتا ہے. تو اس موسم میں آپریشن کی کامیابی کے امکان ہوتے ہیں. سندھ حکومت کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف ایک گرینڈ آپریشن کا اعلان کر چکی ہے. مقامی ذرائع کے مطابق یہ آپریشن ماضی کی طرح ایک پولیس آپریشن نہیں بلکہ اس میں رینجرز بھی حصہ لے رہی ہے. ماضی میں سندھ کی حکومتوں نے کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کئی آپریشنز کیے جن میں کامیابی یہی سمجھی جاتی رہی کہ ڈاکو سندھ سے نکل کر پنجاب یا بلوچستان کے ملحقہ اضلاع میں جا چکے ہیں. بارہا ایسا ہی ہوا اور پھر جیسے ہی ان کے لیے حالات سازگار ہوئے تو وہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ واپس آئے اور لوٹ مار کا اپنا روایتی کام شروع کر دیا. اوباڑو ضلع گھوٹکی سندھ میں مسافر بسوں پر ڈاکوؤں کے حملے کے بعد اغوا ہونے والے مسافروں کو لے جانے والے مسلح ڈاکوؤں کے تعاقب میں پولیس کے ریڈ اور مسافروں کی بازیابی کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل جانے کے بعد سندھ پولیس نے رینجرز کے ساتھ مل کر ایک آپریشن شروع کر رکھا ہے. صوبائی وزیر داخلہ نے خود اس گرینڈ آپریشن کا اعلان کیا اور ڈاکوؤں کو سندھ کی سرزمین سے ختم کر دینے جیسا بڑا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا. جو بھی ہمارے ریسورسز ہوں گے ہم یوز کریں گے اور اسپیسیفک ٹارگیٹس کر کے، اور جو بھی نامی گرامی یہاں پر ڈاکو جو آپ کے سوشل میڈیا پر بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں گے. جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس میں آپریشن میں وہ سب پرووائڈ کریں گے ہم. اور آج آئی جی صاحب نے اور میں نے
रिक्वायरमेंट इनसे ले ली है और ये ऑपरेशन समझें कि आज से शुरू हो गया है। जो कि स्कैंडर्स हैं या जो क्रिमिनल्स हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा चैम्पियन समझते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उनको मुकाबला होगा, फिर उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। वज़ीरिस्तान से ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है कच्चा, और मैं समझता हूँ कि वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान से भी ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक और जदीद तरीन असला जो है वो कच्चे के डाकुओं के पास है। तो ये एक ट्राई बॉर्डर एरिया है। रहीम यार ख़ान और राजनपुर ये पंजाब के आखिरी ज़िला हैं जो कि एक तरफ सिंध को टच करते हैं, ज़िला कश्मोर है, एक तरफ सिंध का ज़िला घोटकी है, एक तरफ पंजाब का आखिरी ज़िला रहीम यार ख़ान है जिसका शहर सादकाबाद है, और एक तरफ ज़िला राजनपुर है। जब रहीम यार ख़ान में पुलिस एक्शन लेती है कच्चे डाकुओं के ख़िलाफ़ जो है वो उनके नबर्द आज़मा होती है तो वो राजनपुर भाग जाते हैं। जब राजनपुर से और रहीम यार ख़ान पुलिस उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू करते हैं तो वो जज़ीरों में दाखिल होकर घोटकी की तरफ चले जाते हैं। जब उनको घोटकी तरफ से जो है वो ज़ोर दबाव डाला जाता है या उन पर फायर किया जाता है या उनका पीछा किया जाता है तो वो घोटकी से निकल के जो है वो दरिया का रास्ता अख्तियार करते हुए वो कश्मोर की तरफ चले जाते हैं। और फिर जब कश्मोर पे भी उनके ऊपर ऑपरेशन किया जाए तो वो वहाँ से बेहतरीन उनके पास रास्ता है कि वो बलूचिस्तान भाग जाते हैं। यही सूरत हाल इस वक्त है। कच्चे के डाकुओं को गोरिल्ला वार से ख़त्म नहीं किया जा सकता। पुलिस कच्चे के डाकुओं का कब तक जो है वो कच्चे के रास्तों में उतर के पीछा करती रहेगी। साल 2022 में चारों अजला की सिंध और पंजाब की ट्राई बॉर्डर की पुलिस और फोर्सेस ने जो है वो एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया था, लेकिन उसके बाद भी आज तक कच्चे के वो डाकू जिनके सर करोड़ों की कीमत थी वो अभी तक वहीं के वहीं हैं, ज़िंदा हैं। तो 2025 में तकरीबन हमारी 86 के राउंड अबाउट किडनैपिंग हुई, हनी ट्रैपिंग के ज़रिए या फोर्स किडनैपिंग के ज़रिए। अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे लोगों को कम से कम अरसे में बाजियाब कराया गया, जिसमें ना सिर्फ बाजियाब कराया गया बल्कि डाकू भी उसमें अरेस्ट भी हुए हैं और उसके अलावा इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज भी हो चुके हैं। हनी ट्रैपिंग की अगर आपको मैं बताता चलूँ तो सिर्फ 2025 में 750 के करीब लोगों को हमने किडनैपिंग बाय हनी ट्रैपिंग जो होती है उससे हमने बचाया, और उसके लिए हमारे डेडिकेटेड एंटी हनी ट्रैपिंग सेल भी कायम किए गए हैं। आप यहाँ से घोटकी की तरफ जाएंगे, 2 चेक पोस्ट आपको पड़ेंगी, एक कोट सब्जल की चेक पोस्ट और दूसरा दाववाला की चेक पोस्ट। दोनों पे हमारे रूम बने हुए हैं। वो हर सवारी को, हर प्राइवेट कार को रोक के एजुकेट करते हैं इस मामले में। अगर आप सिंध की तरफ जा रहे हैं यानी वहाँ पे हमारा गैलपुर और रोंती कच्चा पड़ता है, अगर इस किस्म से आपको बुलाया गया है तो इससे आप परहेज़ करें, इज्तनाब करें या पुलिस से आप मदद लें ताकि आप हनी ट्रैप के ज़रिए अगवा होने से बचाए जा सकें। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो हैं वो नहीं इसको सारी चीज़ों को, चूँकि मैंने बताया 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 3 अगर पंजाब में हैं तो 5 जो हैं वो सिंध में है। अब सिंध पुलिस ये जब पंजाब पुलिस एक्शन लेने लगती है तो ये भाग के उधर सिंध की टेरिटरी में चले जाते हैं। अब इंटर प्रोविंशियल जो कोऑर्डिनेशन है जिसमें पंजाब भी आएगा, जिसमें सिंध भी आएगा, जो वेपन्स इनको आते हैं वाया बलूचिस्तान, वो फिर रोल बनता है फेडरल गवर्नमेंट का। और फेडरल गवर्नमेंट में जो डिपार्टमेंट जो है वो जिसका लीगल रोल बनता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हवाले से, वो है इंटीरियर मिनिस्ट्री। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि लकीली जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो उनमें इतना पोटेंशियल है। वो कहावत है कि यू जज योर सेल्फ बाई वट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग बट अदर्स जज यू बाई वट यू हैव ऑलरेडी डन। तो एज केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब जो उन्होंने अपनी एक पोटेंशियल, अपनी एफिशिएंसी और जो है वो दिखाया है, वो एज इंटीरियर मिनिस्टर भी जो है मैं समझता हूँ कि वो अगर इस इशू को हैंडल करने के लिए जो क्रॉस बॉर्डर जो जुरिस्डिक्शन है इसके हवाले से वो जितना एक कमीशन जो है वो बनाया जा सकता है जिसमें जो इन एडिशन टू पुलिस जिसमें फेडरल लेवल की जो डिपार्टमेंट्स हैं लाइक अपना इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ISI है, स्पेशल ब्रांच प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, होम डिपार्टमेंट है, इंटीरियर मिनिस्ट्री के उसमें नुमाइंदे हो जाएं, फिर लोकल पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनको शामिल किया जाए।
सिंध हुकूमत के डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन के नताइज का इंतजार करना होगा, क्योंकि सिंध पुलिस इस मर्तबा कच्चे के डाकुओं का मुकाबला करने के लिए भरपूर तरीके से फिजाई निगरानी का इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रही है। और इत्तलात यही हैं कि पुलिस जदीद ड्रोन्स के जरिए डाकुओं का न सिर्फ ताक़ुब कर रही है, बल्कि उनके जजीरों में कायम आर्जी और मुस्तकिल ठिकानों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस हकाम का जो कहना था वो यही कहना था कि ये जो अभी इस वक्त जो है गन्ने की फसल वहाँ पर खड़ी है, गन्ने की फसल बड़ी अहम रुकावट होती है ऑपरेशन में। तो अभी यही पॉलिसी थी सिंध और पंजाब की मुश्तरका तौर पे कि फरवरी में जो है डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा, पर चूंकि एक ये वारदात हो गई थी बहुत बड़ी, जिसकी वजह से सिंध पुलिस को मूव करना पड़ा, तो अभी जो है ये ऑपरेशन उसी वक्त से जो वो शुरू हो गया। इस वक्त भी बड़ी हर्डल है जो कच्चे के इलाके में जो गन्ने की फसल यहाँ पर खड़ी है, क्योंकि गन्ने की फसल बड़ी होती है, इसमें डाकू छुप जाते हैं, मूवमेंट इतनी साफ नज़र नहीं आती, तो जिसकी वजह से ये रुकावट है। लेकिन जो गंदम की फसल होती है क्योंकि वो छोटी होती है, उसमें ज़रा इजी होता है अप्रोच करना उसकी कटाई के बाद, और उसमें डाकू छुप नहीं सकता इतना, तो इस वजह से गन्ने की फसल में तो बिल्कुल कवर हो जाता है। तो अभी ये फरवरी में था, लेकिन ये वाक़या होने के बाद अभी जो है वो टारगेटेड कार्रवाई जो है वो की जा रही है। लेकिन एक जो जिसका ऐलान किया जा रहा है, जैसे एक छोटू गैंग के खिलाफ बाकायदा प्रॉपर पहले एक ऑपरेशन हुआ था इस इलाके में, वैसा जो ऑपरेशन वो नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए तो बाकायदा एक कैंप लगे थे कच्चे के करीब, और सैकड़ों जो है वो खैमे लगे थे, पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, हज़ारों की तादाद में उनकी मूवमेंट थी, पाक आर्मी भी आई थी, रेंजर्स तो इस वक्त भी है डिस्ट्रिक्ट घोटकी में, उसका बड़ा किरदार है। रेंजर्स जो है वो पुलिस के साथ साथ जो है वो ऑपरेशन करती है। सिंध हुकूमत ये ऐलान कर रही है कि वो अपने इलाकों को इन मुसल्लह डाकुओं से पाक कर देगी। क्या ये ऐलान नतीजा खेज साबित होगा, या माजी की तरह का ही एक ज़बरदस्त ऐलान, जिसकी अभी बाज़गश्त भी ख़त्म नहीं हुई थी, कि डाकुओं के जदीद तरीन असलहे से लेस गैंग्स ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। हम इन्वेस्टिगेट्स ने मुल्तान से रुकन कौमी असम्बली सैयद अली कासिम गिलानी से बात की, जिन्होंने कच्चे के डाकुओं के बारे में हैरान कुन इंकशाफात किए। दिस टॉपिक इज़ ऑल्सो क्लोज टू माई हार्ट, और हम बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। मेरे इलाके से दीगर हमारे मेंबर्स, आप सही कह रहे हैं कि ये जो सारी बेल्ट है कच्चे की, यहाँ पर इवन इन पंजाब एंड अक्रॉस द प्रोविंशियल बॉर्डर, सिंध में भी पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में। हमारे अक्सर हलकों से, इलाकों से लोग जो है वो अगवा बराए तावान में उधर चले जाते हैं। देन हमने एक सिंध में एक सेल बनाया हुआ है जो कि इट इज़ प्रॉपरली लुक्ड आफ्टर बाय द मिनिस्टर हिमसेल्फ, जो कि सिर्फ अगवा बराए तावान के केसेस जो कि पंजाब और सिंध से लोगों को कच्चे के डाकू उठा के ले जाते हैं, कई वापस भी हमने करवाए हैं। और उसमें इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड इशू बिकॉज देर आर 3 और 4 डिस्ट्रिक्ट्स जिसके अलग-अलग पुलिस के DPOs हमारी तरफ हैं और SPs हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। और ये बहुत ही एक कच्चे का जो इलाका है उसमें कश्मोर, गोटकी, रहीम यार ख़ान आपस में मिक्स हैं, वो बॉर्डर भी क्रॉस कर जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ भी वो क्रॉस कर जाते हैं, तो एक मसले मसाइल तो हैं। मैं इसमें मुझे क्लैरिटी है एंड आई टेक अप दिस मैटर विद पार्टी हाई अप्स, और गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल से भी मैंने ये 12 दफ़ा ये रिक्वेस्ट की है। गुज़िश्ता हफ्ते कच्चा इमरानी और दीगर मुल्हिका इलाकों में जब पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन का आगाज़ किया, तो इस ऑपरेशन में 16 डाकू मारे गए, 27 ज़ख्मी हुए और 9 मुग़वी अफराद को बाजियाब कराया गया। दूसरी तरफ पंजाब के अजला रहीम यार खान और राजनपुर में भी पुलिस ने ड्रोन्स और जदीद असलहे से लैस फोर्स के साथ डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर रखी है। इस दौरान एक ऐसे डाकू को भी गिरफ्तार किया गया है जिसके सर की कीमत 1 करोड़ रुपए मुकर्रर थी। गुज़िश्ता बरस अगस्त में इन्हीं मुसल्लह डाकुओं ने शिखानी पुलिस चौकी पर हमला कर दिया था, जिसमें 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। राजनपुर में भी कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से एक ऐसा ही ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें एक इंतहाई मतलूब डाकू को हलाक किया गया, जबकि उसके 3 साथियों को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि उसने ऑपरेशन के दौरान 6 मुग़वियों को बाजियाब कराया है। सिंध हुकूमत को ये ऑपरेशन का ऐलान कुछ इस वजह से भी करना पड़ा। ऐलान तो ये पहले से भी था कि डाकुओं के खिलाफ परमानेंट ऑपरेशन करना है,
پہلے یہاں پر سندھ کے جو IG تھے غلام نبی میمن تھے، وہ بھی کافی متحرک تھے، انہوں نے بھی کافی یہاں پر پولیس پکٹیں بنوائی تھی یہاں پر، جب اس وقت گھوٹکی میں SSP تنویر تنیو تھے، اس کو پورا ایک بارڈر کو سیل کر دیا تھا تاکہ ڈاکو کی آمد رفت جو ہے وہ رک سکے، اور اس کے بعد جو ہے ان پہ باقاعدہ آپریشن کیا جائے اور پھر ان کو ڈاکوؤں کا خاتمہ کیا جائے۔ نو ڈاؤٹ یہ کافی عرصے سے یہاں پر ڈاکو متحرک ہیں، لیکن اس وقت جو یہ آپریشن شروع کیا گیا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حال ہی میں اباڑو جو کہ ڈسٹرکٹ گھوٹکی کی تحصیل ہے، سندھ پنجاب بارڈر کے قریب ہے، یہاں پر تقریباً 1 درجن سے زائد ڈاکوؤں نے بس پر، مسافر بس پر حملہ کر کے تقریباً 10 سے 12 مسافروں کو اغوا کر لیا تھا، اور اس کے فوری بعد جو ہے وہ ڈاکو اس کو کچے کی طرف لے کر جا رہے تھے۔ تو اسی دوران جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ متحرک ہوئی، جس میں ڈسٹرکٹ جو پولیس کے آفیسر تھے SSP انور کھیتران اور DIG تھے فیصل عبداللہ، فوری طور پر پورے ڈسٹرکٹس کے جو SSPs کو جمع کر کے پولیس کو اکٹھا کر کے تو ان ڈاکوؤں کو تعاقب کیا، ان کا محاصرہ کیا، اور پھر جو رحیم یار خان پولیس کی بھی جو ان سے معلومات حاصل کی گئی، کیونکہ یہ سندھ اور پنجاب کا جو وہ ایریا لگتا تھا، ڈاکو واردات کے بعد جو ہے سندھ میں واردات کے بعد وہ رحیم یار خان کے کچے میں جو ہے وہ فرار ہو گئے تھے۔ تو پھر وہاں پر سرویلنس کی گئی اس کے ڈرون کے ذریعے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈرون کارروائی کی گئی جس میں ڈاکو زخمی ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ مغویوں کو چھوڑ کر ڈاکو فرار ہو گئے۔ اس طریقے سے جو ہے وہ پھر پولیس نے وہ سارے بازیاب کروا لیے مغوی، اور اسی رات جو ہے یہ مغوی جو بازیاب ہو گئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے دن تک پولیس نے پھر ان جہاں ڈاکو کے ٹھکانے تھے ان پر جو ہے وہ کاروائیاں کرتے رہے۔ اس کے علاوہ بھی جو دوسرے بھی جو وہاں پر جو ہنی ٹریپ سے اغوا کیے گئے تھے مغوی، وہ بھی پھر بازیاب ہوئے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان علاقوں کی سماجی، سیاسی اور جغرافیائی ساخت کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہاں پر حکومت کی ملکیت 50,000 ایکڑ سے زائد سرکاری زمین جو دریا کے دونوں طرف پھیلی ہوئی ہے اور زرخیز ترین زمین ہے۔ اس پر قبضے کی جنگ بنیادی طور پر قابض وڈیروں اور قبائلی سرداروں کو اپنا قبضہ قائم رکھنے کے لیے مجبور کرتی ہے کہ وہ مسلح افراد اور خاص طور پر جرائم پیشہ گروہوں کی نہ صرف مدد کرتے رہیں بلکہ انہیں مشکل حالات میں پناہ اور ریلیف بھی دلوائیں۔ دا انٹیلیجنس رپورٹس لوور لیول پہ جو سرٹن پولیس آفیشلز جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں جو ہے وہ ایک سہولت کاری رپورٹ ہوئی ہے، کیونکہ جو لوکل ہوتے ہیں وہ، اور ایک طرح سے ان کا خوف بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی انہیں پتہ ہوتا ہے کہ آفٹر ریٹائرمنٹ ہم نے ادھر ہی رہنا ہے، تو ان سے دشمنیاں مول نہ لی جائیں۔ جو انفارمیشن کا ایک سسٹم ہے، جو مخبر ہوتے ہیں، پولیس بھی مخبر جو ہیں انہی کی انفارمیشن پہ ہی سارے اپنے آپریشنز جو ہے وہ لانچ کرتی ہے۔ میرا جو سندھ کا ایکسپیرینس ہے وہاں میں نے دیکھا ہے کہ ہم اس طرح جب ڈیل کرتے تھے تو پھر ان کے جو معززین یا ان کے جو ٹرائبل ایلڈرز ہیں، سردار ہیں، ان سے کبھی بات ہوتی تھی تو وہ سچی بات ہے وہ بھی اپنی بے بسی کا اظہار کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ سر یہ تو کرمنل لوگ ہیں، سانپ جو ہے وہ جیسے مطلب مٹی کھاتا ہے، تو یہ تو اپنے باپ کا بھی نہیں مانتے تو ہماری کہاں مانیں گے۔ وہ اگر کوئی مغوی جیسے لوگ چھڑاتے رہے ہیں یا ٹرائبل ایلڈرز کو بیچ میں ڈالتے رہے ہیں، کسی زمانے میں چائنیز انجینئر یہاں سے اغوا ہوئے تھے کشمور سے، تو ان دنوں بھی جو اس وقت کے ٹرائبل ایلڈرز تھے ان لوگوں کی کوششوں سے وہ بازیاب ہوئے تھے۔ تو وہ یہی کہتے تھے کہ جی ہمیں گورنمنٹ نے کہا، ہم نے سپورٹ کیا، ہم نے ان سے بات کر کے مغوی چھڑا کے دیے، لیکن پیسے پھر بھی انہوں نے لیے، یہ نہیں کہ ہمارا کوئی انہوں نے وہ یہ ہمارے لیے مفت میں انہوں نے چھوڑ دیا کہ جی ہمارے یہ ٹرائبل ایلڈرز کہہ رہے ہیں تو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں، پیسے تو انہوں نے پھر بھی دیے تھے۔ کچھ ہو بھی سکتا ہے کچھ لوگ اس میں تھوڑی بہت ان کو دیتے ہوں سپورٹ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نہ دیتے ہوں، لیکن کچھ ہمارے ٹرائبل لوگوں میں بھی ذرا کچھ وڈیرا بننے کا بھی کچھ شوق ہوتا ہے نا، تو وہ بھی بعض لوگ ان میں سے ان کو یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ یار ہم ذرا کرمنل سے تھوڑا واسطہ رکھیں تاکہ سوسائٹی میں ہمارا ٹیکا بنا رہے کہ یہ فلاں بندہ ہے جی جو کوئی مغوی ہوا تو واپس کرا سکتا ہے، یا کسی کا کوئی مال بھینسیں ویسے گئی تو واپس وہ کرا دے گا۔ تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ لوگوں کا ضرور ہوگا، میں اس میں آؤٹ رائٹلی اس کو وہ نہیں کرتا۔
ہمارے جو MPAs ہیں رحیم یار خان کے، ان کو بہت شدید خطرات لاحق ہیں کچے کے ڈاکوؤں سے بھی، اور انہوں نے بارہا پریس کانفرنسز میں بھی، فلور آف دا ہاؤس پہ بھی، اسپیکر کے ساتھ بھی یہ میٹر ٹیک اپ کیا ہے۔ سندھ پولیس کا جو آپریشن ہے کامیاب ہوتا ہے تو وہاں کے جو ڈاکو ہیں ان میں ان کا ایک جو سندھ میں آنے جانے کا سلسلہ ہے وہ رک جائے گا۔ سندھ میں جاری آپریشن میں پنجاب سے بھی مدد لینے کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن پنجاب کی طرف سے سندھ کے کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن میں تعاون کی تاریخ بہت اچھی نہیں۔ حکومت سندھ کا شکوہ ہے کہ پنجاب میں سابق نگران حکومت سے بھی درخواست کی گئی تھی لیکن تعاون نہ کیا گیا۔ سندھ میں حکام کے مطابق گھوٹکی کے علاقے میں 43 ڈاکو انتہائی مطلوب ہیں، جن کے سروں کی قیمت 2 لاکھ سے 50 لاکھ تک مقرر کی گئی ہے۔ یہ ڈاکو انفرادی طور پر یا گینگ تشکیل دے کر کارروائیاں کرتے ہیں اور ان گینگز میں سینکڑوں جرائم پیشہ لوگ شامل ہیں۔ محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق گھوٹکی اور اس کے نواح میں سب سے خطرناک ڈاکو راہب عرف کلثوم شر ہے، جس کے خلاف سندھ پولیس میں 42 مقدمات درج ہیں۔ کلثوم شر کی گرفتاری میں مدد دینے پر حکومت نے 50 لاکھ روپے کا انعام مقرر کر رکھا ہے۔ پولیس کے مطابق خدا بخش شر نامی ڈاکو کے خلاف 18 مقدمات درج ہیں اور اس کے سر کی قیمت بھی 50 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ جمیل انہڑ اور میر جمیل جاگیرانی بھی بالترتیب 13 اور 10 مقدمات میں مطلوب ہیں۔ دوسری طرف ضلع کشمور میں 79 ڈاکو مطلوب ہیں، جن میں ریاض جاگیرانی کے سر کی قیمت 50 لاکھ روپے مقرر ہے۔ سائیں داد مشکی، علی جان اور شیر محمد سمیت ہر ایک کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے مقرر ہے۔ حکومت سندھ کے علاوہ یہ جو ہیں مختلف سیکیورٹی انٹیلیجنس ادارے جو ہیں ہر ڈسٹرکٹس میں موجود ہوتے ہیں، جس میں MI ہے، ISI ہے، اسپیشل برانچ ہے، وہ بھی بھرپور تعاون کر رہے ہیں خفیہ طور پر، اور ہیومن ریسورس سے جو اطلاعات مل رہی ہیں یا ٹیکنیکل جو بھی مل رہی ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں، کیونکہ بہت سے حالات پولیس کے پاس نہیں ہیں تو پھر اس سے ہیلپ لے کے کی جاتی ہے، کیونکہ گزشتہ کئی سالوں سے جو ہے یہاں پر جو ڈاکو راج قائم ہے، یہ جو سندھ پنجاب کی جو سرحدی پٹی ہے، ڈاکو جو ہیں سندھ میں کارروائی کرنے کے بعد پنجاب میں فرار ہو جاتے ہیں، پنجاب میں کارروائی کرنے کے بعد سندھ میں فرار ہو جاتے ہیں۔ چونکہ یہ جو ایک دریا ہے یہ بہت بڑا دریا ہے، 50 کلومیٹر تک تو اس کی چوڑائی ہے، لمبائی تو ایسے سمجھیں کہ کراچی تک ہے، لیکن اس کی چوڑائی بھی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے مختلف جزیرے بنے ہوئے ہیں، تو پولیس کی جو گوریلا وار ہے وہ تو بالکل یہاں پر کام ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر پولیس جاتی بھی ہے تو پیچھے سے دوسرے جو دستے ہیں ڈاکوؤں کے، جو تقریباً 12 سے 15 گروہ جو ہیں وہ بڑے بتائے جاتے ہیں، تقریباً 150 سے 200 ڈاکوؤں کی تعداد بتائی جاتی ہے، وہ پھر آپس میں مشترکہ طور پر حکمت عملی کر کے پولیس اگر آگے جاتی ہے تو پیچھے سے حملہ کرتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ بہت لمبا دریا ہے، تو یہ اسٹریٹجی تو اس طرح گوریلا سے تو ہے ہی نہیں، پھر یہ ڈرون کارروائی سے جو ہے یہ کارروائی کر کے کسی حد تک اس کو جو ہے وہ کور کیا گیا ہے۔ اس میں انٹیلیجنس اداروں کی سب کی جو ہے معاونت اور تعاون جو ہے وہ شامل ہوتی ہے، جو یہ آپریشن ٹارگیٹڈ ہوتے ہیں۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ سندھ میں مسافر بسوں پر ڈاکوؤں کے حملے اور اغوا کی وارداتیں معمول ہیں، اور خاص طور پر گھوٹکی، کشمور اور کندکوٹ کے علاقوں میں اس قسم کی وارداتیں عام ہیں، جن کے بعد مقامی پولیس نامزد ڈاکوؤں کے خلاف ایک محدود پیمانے کا آپریشن یا ان کا تعاقب کرتی ہے، جس پر یا تو ڈاکو مارے جاتے ہیں یا فرار ہو کر پنجاب اور بلوچستان کی طرف نکل جاتے ہیں۔ جب دوبارہ وہ سمجھتے ہیں کہ پولیس ایڈمنسٹریشن میں تبادلوں کے بعد اب حالت پہلے جیسی نہیں رہی تو واپس آ جاتے ہیں اور دوبارہ اپنا پرانا کام شروع کر دیتے ہیں۔ اس مرتبہ ایک ایسے موسم میں گرینڈ آپریشن کا اعلان اور سندھ رینجرز کے علاوہ ریزرو پولیس کے دستوں کو ساتھ ملا کر ایک بڑی کارروائی کا آغاز اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ظفر راجپوت گھوٹکی
कश्मीर और डाकुओं के गैंग्स के लिए मशहूर दूसरे इलाकों के दौरे पर हैं। घोटकी बार काउंसिल से अपने खिताब में चीफ जस्टिस ने मुकामी सतह पर अमन व अमान की खराब सूरत हाल और खास तौर पर डाकुओं के हवाले से वकला की शिकायत पर अपनी तशवीश का इजहार किया था, जिसके बाद सिंध हुकूमत हरकत में आई और एक ग्रैंड ऑपरेशन का ऐलान किया गया। दूसरी तरफ सियासी हलकों में भी इस बात पर तशवीश का इजहार हो रहा है कि सिंध के शुमाली इजला में एक बार फिर बदअमनी बढ़ रही है और आम लोगों की शिकायत में इजाफा हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा मसला है। हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इसके को भी थ्रेट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो MPs हैं रहीम यार ख़ान के, उनको बहुत शदीद ख़तरात लाहक हैं कच्चे के डाकुओं से भी, और उन्होंने बारहा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी, फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी, स्पीकर के साथ भी ये मैटर टेकअप किया है। और मैंने जिस तरह आपको पहले कहा कि जब तक हम दोनों सूबों की एक जॉइंट फोर्स विद दी एडिशन ऑफ रेंजर्स नहीं कायम करते ताकि वो इस कच्चे के वाले जो एरियाज़ हैं उसको संभालें, मिल के संभालें, बिकॉज वी नीड इंटेलिजेंस शेयरिंग, वी नीड टेक्नोलॉजी शेयरिंग। बट आई एम होपफुल कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी भी आगे जा रही है हम इस मेनेंस को टैकल करने में कामयाब हो जाएंगे। अभी रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, एक एमनेस्टी स्कीम लॉन्च की थी कच्चे के डाकुओं के लिए, कि वो अगर आप अपने हथियार फेंकते हैं और वो कोई ज़्यादा सीरियस क्राइम्स में या किसी मर्डर में नामजद नहीं है तो उनको एक आम माफ़ी की उन्होंने दी है। तो आई थिंक उससे हालात थोड़े बेहतर होंगे, लेकिन एज़ वी स्पीक थिंग्स आर नॉट गुड इन दिस एंटायर बेल्ट। और अब मोटरवे भी जाने में लोगों को मुश्किलात हैं, और मुझे बताया गया है कि मोटरवे के ऊपर इफ़ यू आर ट्रैवलिंग एट नाइट तो आपको रेंजर्स और जो कि मोटरवे पुलिस है वो आपको एस्कॉर्ट करके रोडी टोल प्लाजा तक लेके जा रहे हैं। आई एम होपफुल कि अगर एक जॉइंट टीम बन जाती है, जॉइंट फोर्स बन जाती है, उनको कोई इश्यूज़ नहीं है, परमिशंस की ज़रूरत नहीं है पंजाब पुलिस को सिंध जाने में, सिंध पुलिस को पंजाब आने में, एंड सो विद रेंजर्स, तो ये हम इस इशू को डायरेक्टली हिट कर सकते हैं विद किनेटिक एक्शन। 250 किलोमीटर की एक पट्टी है, उसमें अनरेस्ट क्यों रहता है? और ये हमेशा नुक्ता रहता है कि कहीं जो कच्चे के ये डाकू हैं, एक खौफ का समा है इन 4 अजला में, कश्मीर, घोटकी, रहीम यार ख़ान, राजनपुर में। अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो वहाँ 57 से ज़ायद मेंबर पार्लियामान हैं जो सूबाई हलकों में भी बैठे हुए हैं, नेशनल असम्बली में भी हैं और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी हैं, और मकामी ज़्यादातर वडेरे हैं वहाँ से। तो आप इंटरव्यूज़ करते हैं पुलिस ऑफिसर्स के, लोकल जो लोग हैं वहाँ पर, उनसे जब आप पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है, कच्चे के डाकू का जो खौफ है, जो अनरेस्ट है, इसका सलूशन और ऑपरेशन कामयाब क्यों नहीं होते हैं, क्या किसी की पुष्ट पनाही है इसमें? तो हमने ये देखा है कि किसी हद तक जो वडेरे हैं वहाँ मकामी तौर पर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे वडेरे मकामी जो इन्फ्लुएंशियल हैं, ताकतवर हैं, शायद कच्चे के कुछ डाकू जो हैं या तो वो विक्टिम हैं किसी हद तक, या फिर उनको कुछ को सरपरस्ती हासिल है जिसकी बुनियाद पर ये अनरेस्ट रहता है। और दूसरा, वहाँ पर करोड़ों रुपए का नहीं, अरबों रुपए का कारोबार है। उस इलाके में जो दरियाए सिंध की एक पट्टी है, वहाँ लश ग्रीन ज़मीनें हैं, गन्ना होता है, वहाँ गंदम होती है, हर फसल वहाँ पर होती है। और आपने देखा होगा कि जब वहाँ पर कोई भी फसल तैयार होती है उस वक्त कच्चे में अनरेस्ट शुरू हो जाता है, पुलिस ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं, और अब वहाँ पर बाकायदा तौर पर मुकाबले में कई डाकू मारे जाते हैं, किसी को पकड़ कर लिया जाता है। हालिया ऑपरेशन को बाज़ माहिरीन उजलत में उठाया हुआ कदम करार दे रहे हैं और उनका कहना है कि एक नतीजा खेज ऑपरेशन के लिए ना मौसम साजगार है, क्योंकि धुंध की वजह से डाकुओं को छुपने और ताक़ुब करती पुलिस की नजरों से बच जाने के लिए बहुत सी जगहें और ठिकाने मुयस्सर होंगे, और इसके साथ साथ उन मखसूस इलाकों में 7-8 फुट तक ऊंची कमात की फसलें भी उनको पनागाहें फराहम करेंगी। नफ्सियाती असर पड़ सकता है। अगर के सिंध पुलिस का जो ऑपरेशन है कामयाब होता है तो
वहाँ के जो डाकू हैं उनमें उनका एक जो सिंध में आने जाने का सिलसिला है वो रुक जाएगा। वहाँ पे भी अगर वो कोई ऑपरेशन होगा तो अगर सिंध में ऑपरेशन कामयाब हो जाता है तो फिर वो उनके इधर आने के रास्ते बंद हो जाएंगे। इनको तो हर वक्त जो है ना अपनी गाड़ियों की ज़रूरत नहीं होती, इन्होंने तो अपने जो है ना वो एरियाज़ जो है ना वो ईयर मार्क किए होते हैं, वहाँ जो है ना ये इनकी सर्वाइवल के लिए जो इनको ज़रूरत है, लाइक अब क्रॉप्स हैं तो वहाँ पे मलकियत जो है मेजॉरिटी ऑफ द लैंड जो है वो या महकमे ज़राअत की है और जो है या रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, ये दो ही महकमे हैं। हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसकी भी वीकनेसेस जो हैं वो भी आड़े आती हैं, जो अरेस्ट भी हो जाते हैं तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि उनको फिर प्रॉपर कन्विक्शंस नहीं हो पाती, तो उस वजह से वो फिर इनकरेज होते हैं। ये चीज़ भी एक तरह से जो एक पुलिस का खौफ है उसको किसी हद तक कम कर देती है। वो कहते हैं जी ठीक है हम गिरफ़्तार हो भी गए तो सिस्टम में इतने लूप होल हैं कि हम उनका फ़ायदा उठाते हुए जो है हम बच निकलेंगे, हम एक दिन फिर बाहर आ जाएंगे और फिर आके इस जो है ना अपने गैंग इनको में फिर दोबारा शमूलियत जो है वो हम इख्तियार कर सकेंगे। कच्चे के डाकू भी जहाँ से भी उनको हेल्प मिलेगी तो वो लेने में देर नहीं लगाएंगे। देखिए ना उनको ये असला मिल रहा है, ये रॉकेट लॉन्चर्स मिल रहे हैं, मार्टर गन्ने मिल रही हैं, ये इतना सोफिस्टिकेटेड उनको वेपन्स मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं? ज़ाहिर है उनका लिंक बलूचिस्तान या टीटीपी के हवाले से अफ़गानिस्तान या इधर से कोई उनका ऐसा सोर्स तो है जहाँ से कॉन्स्टेंटली उनको ये वेपन्स मिल रहे हैं। या BLA वालों का तो अब हमारी एजेंसीज़ भी जैसे बताती रहती हैं कि इंडियन गवर्नमेंट्स भी, इंडियन एजेंसीज़ भी उनको सपोर्ट करती हैं। हो सकता है ये सोफिस्टिकेटेड वेपन्स BLA वालों के ज़रिए से या अफ़गान TTP वालों के ज़रिए से हो सकता है इनको मिल रहा है, वरना आप देखिए ना मार्केट में तो नहीं रॉकेट लॉन्चर मिलते कि वो जाके ले लेंगे। और ऐसा भी नहीं कि 4 गोले थे इनके पास वो ख़त्म हो गए तो आगे कहाँ से कांस्टेंट सप्लाई कहाँ से आ रही है? अगर थोड़ा पीछे मुड़कर देखा जाए तो सिंध में खासतौर पर डाकुओं के बारे में एक सरेंडर पॉलिसी भी अपनाई गई। जून 2024 में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सक्खर में कच्चे में अमन अमान के क़याम के लिए इजलास की सदारत की, जहां उन्हें बताया गया कि पुलिस और रेंजर्स ने कच्चे के डाकुओं के खिलाफ 133 मुश्तरका ऑपरेशन किए हैं, जिनमें सैकड़ों डाकुओं को गिरफ्तार किया गया है। इस इजलास में सदर जरदारी ने डाकुओं के लिए सरेंडर पॉलिसी बनाने की हिदायत की और कच्चे के इलाकों में सड़कों, सेहत और तालीम के बुनियादी ढांचे को तरजीही बुनियादों पर बेहतर बनाने पर जोर दिया। हालिया ऑपरेशन के आगाज का ऐलान करते हुए सूबाई वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार ने डाकुओं को दोबारा सरेंडर करने की पेशकश भी की। सिंध गवर्नमेंट ने सरेंडर पॉलिसी बनाई कि जो डाकू खुद को वॉलंटरली पुलिस के हवाले करें तो उनके साथ कानूनी तौर पे इंसाफ किया जाएगा, उनको कोई मावरे अदालत कत्ल नहीं किया जाएगा, उनको अदालतों में पेश किया जाएगा। तो उसमें सिर्फ शिकारपुर के 50 से ज़्यादा जो तेगानी कबीले के ज़्यादातर लोग थे वो सरेंडर हुए। गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं और गवर्नमेंट के जो लॉज हैं वो तो फॉरबिड करते हैं कि आप रिवराइन बेल्ट के अंदर कोई भी इंटरवेंशन कर नहीं सकते और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक सेंसिटिव चीज़ है ना। बेरोज़गारी है, दूसरा गुर्बत है, जहालत है। यहाँ पे अगर देखें क्राइम को ख़त्म करना है ना तो ये जो मेन इश्यूज़ हैं इन पे भी तवज्जो देनी होगी।
अगर सिंध और पंजाब में फैले हुए कच्चे के इलाके का फिजाई जायजा लिया जाए तो अंदाजा होता है कि मानसून की बारिशों के दौरान दरिया सिंध के तेज बहाव की वजह से पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दरिया के दोनों किनारों से बाहर निकलकर हिफाजती बंदों तक पहुंचता है। इन्हीं बंदों को बुनियादी तौर पर कच्चे और पक्के की हदबंदी करार दिया जाता है और अंग्रेज दौर ही से कच्चा और पक्का ये नाम चलते आ रहे हैं। हिफाजती बंदों के अंदर वाक़े इलाके में दरियाई पानी की आमदोरफ्त जरखेज तरीन मट्टी को अपने साथ लाकर बिछाती रहती है और कुदरती तौर पर यहाँ की ज़मीनें पानी उतर जाने के बाद फसलों के लिए मौजू तरीन और जरखेज समझी जाती हैं। चूँकि बंदों के अंदर का ज़्यादातर इलाका सरकारी मिल्कियत में है और ज़मीनों के बड़े सरकारी मालिक महकमा जंगलात और महकमा रेवेन्यू है। दोनों सरकारी महकमे इस काबिल नहीं कि वो यहाँ अपने तौर पर कब्जा लेकर मुनाफा बख्श काश्तकारी का बंदोबस्त कर सकें, इसलिए फिर कब्जा करने वाले जागीरदार और वडेरे आगे बढ़कर ये काम करते हैं। कब्जा बरकरार रखने और मजीद कब्जे करने के लिए अफरादी कुव्वत की जरूरत पड़ती है जो डाकुओं की मदद से पूरी की जाती है। इस इलाके की पसमानदगी की सबसे बड़ी वजह यह भी है कि हुकूमतें अपनी सियासी मजबूरियों के बायस इन इलाकों की तरफ इंतजामी तवज्जो नहीं देती। जब इन इलाकों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो इन इलाकों में तरक्याती काम भी नहीं होते और ना ही मुकामी लोगों को आम शहरियों की तरह किसी किस्म की सरकारी सहूलत मुयस्सर आती है। तकरीबन यही सूरत हाल यकसां तौर पर कच्चे के इलाके पर मुश्तमिल सिंध और पंजाब के अजला में है, जो जराइम पेशा गिरोहों में इजाफे की बड़ी वजह है। कच्चे के इलाके में जो तरक्याती काम है वो अगर आप पहले कच्चे के डायनामिक्स समझ लें कि कच्चा कहते कि इसको हैं। कच्चा बेसिकली जो हमारा रिवराइन बेल्ट होता है उसको कहते हैं कि जो ओरिजिनल दरियाए सिंध का एरिया है उसमें डेवलपमेंट के काम उस तरीके से हो नहीं सकते क्योंकि फ्लड को आप रोक नहीं सकते और दरिया को आप अगर उसका एरिया कर्टेल करेंगे वो कहीं ना कहीं डैमेज ज़रूर करेगा। तो गवर्नमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं और गवर्नमेंट के जो लॉज हैं वो तो फॉरबिड करते हैं कि आप रिवराइन बेल्ट के अंदर कोई भी इंटरवेंशन कर नहीं सकते और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक सेंसिटिव चीज़ है ना कि आप अगर पानी का रास्ता रोक देंगे तो वो नेचुरली उसका जब पीक सीज़न चल रहा होता है तो वो अगर यहाँ पे नहीं, एक तो जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे उसको डैमेज करेगा, सिर्फ उसको डैमेज नहीं करेगा बल्कि उसकी वजह से जो बाकी उसके जो फनल एरियाज़ हैं जहाँ से पीछे से पानी आ रहा है वो नेचुरली वहाँ पे भी डैमेज करेगा। तो उसकी एक तो कास्ट बहुत ज़्यादा है, दूसरा वो फिजिबल भी नहीं है और तीसरा ये है कि वो रिकमेंडेड भी नहीं है। बेरोज़गारी है, दूसरा गुर्बत है, जहालत है। यहाँ पे अगर देखें क्राइम को ख़त्म करना है ना तो ये जो मेन इश्यूज़ हैं इन पे भी तवज्जो देनी होगी, हुकूमत को इस पे भी फोकस करना होगा। तालीम पे, रोज़गार पे, सेहत पे, इंसाफ भी मिलना चाहिए। अब काफ़ी सारे आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, काफ़ी सारे क्रिमिनल्स जो हैं वहाँ कच्चे से वो इसमें सोशल मीडिया पे आए हुए होते हैं, बता रहे होते हैं जी हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, हमारा फलाने को गलत पकड़ लिया, उसको गलत पुलिस मुकाबले में मार दिया, हम उसका बदला लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से की जो चीज़ें हैं उनका भी तदारुक करना चाहिए। और यहाँ पे जो गुर्बत है ना, मैं समझता हूँ कि सब जराइम की जो जड़ है ना वो गुर्बत है कि जब एक गरीब आदमी है ना उसको कुछ नज़र नहीं आता अगर, और साथ में जहालत भी है, फिर वो क्राइम की तरफ माइल हो जाता है, फिर वो जुर्म करता है, फिर उसको जो है ना वो फिर मसाइल पैदा होते हैं। यार कच्चे का जो ऑपरेशन है वो तो थ्रू आउट चलता ही रहा है, कभी प्रॉपर फुल फ्लेज ऑपरेशन चल रहा होता है, लेकिन IBOs तो हम रेगुलर कर रहे होते हैं। साथ में बंद के अंदर जो आबादी है ना वो अच्छी खासी हज़ारों की तादाद में आबादी है, उधर भी डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ बहुत एक स्ट्रांग जो है ना, जैसे हम IBOs कर रहे होते हैं वो भी होना बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है डेवलपमेंट भी की जाए। डाकुओं का जो असला है, एक तो उनका ट्राइब दर ट्राइब, नस्ल दर नस्ल जो है ना असला ट्रांसफ़र भी होता है, और ऐसी कोई गैर कानूनी अनलाइसेंस मार्केट्स हैं वहाँ से भी इनको आ रहा है। फ़र्ज़ करें बाज़ औक़ात ये KP साइड से मंगवा लेते हैं, बाज़ औक़ात बलूचिस्तान से भी मंगवा लेते हैं। एंटी एयरक्राफ्ट वीडियोज़ में आपने देखा होगा 12.7 एक दो गैंग्स के पास हैं, लुंडों के पास भी एक वीडियो बनी थी आपने देखी होगी, इंदड़ गैंग के पास भी है, शर गैंग के पास भी है, 12.7 उनके पास गन है। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली CDPO साहब के टेन्योर में हमारे पास ड्रोन्स भी आ गए हैं,
ہمارے پاس تھرمل امیجننگ والی سنائپر گنز بھی آ گئی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ تھرمل کیمراز جو ہماری کیمپس کے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں، اور جب سے وہ انسٹال ہیں، ہم نے اڈاپٹ کیے ہیں، یوز میں لائے ہیں، تو ہمیں الحمدللہ خاطر خواہ کامیابیاں مل رہی ہیں۔ آپ یہ بھی دیکھیں پچھلے 2 مہینوں میں کوئی مومنٹ، کوئی انسیڈنٹ، کوئی کڈنیپنگ رپورٹ نہیں ہوئی، اور اس کو ہم مزید اور یوز ٹو بھی ہو رہے ہیں اور اس کو بہتر بھی بنا رہے ہیں۔ اس دفعہ جو آپریشن ہو رہا ہے سندھ میں، جس کو گرینڈ آپریشن کا نام دیا گیا ہے، اس میں اور سابقہ آپریشنز میں صرف گرینڈ کا فرق ہے، اور میرے خیال میں یہ گرینڈ آپریشن اس لیے کہا گیا ہے کہ اس دفعہ رینجرز کے علاوہ ریزرو فورس کو بھی ساتھ ملایا گیا ہے۔ لیکن اس آپریشن کی کامیابی کا انحصار صرف سندھ پر نہیں ہے، اس آپریشن کی کامیابی کا انحصار پنجاب پر بھی ہے اور بلوچستان پر بھی ہے۔ پنجاب حکومت کے ساتھ باضابطہ طور پر اپیل کی گئی ہے، لیکن ابھی تک پنجاب حکومت نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ پنجاب کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ ہم آلریڈی ایک آپریشن کر رہے ہیں۔ رحیم یار خان اور دیگر جو علاقے ہیں وہاں پر جو پولیس کارروائی کر رہی ہے یا جو آپریشن ہو رہا ہے، اس میں زیادہ تر سہولت کار پکڑے جا رہے ہیں، جو ڈاکوں کے سہولت کار ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اچھی پیش رفت ہے کہ سہولت کاروں کی سے تفتیش کر کے پولیس جو ہے وہ مزید ڈاکوں کے خاتمے کے لیے مزید کارروائی کر سکتی ہے، نہ صرف بلکہ انہیں ٹریک کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوارڈینیشن ہوتی ہے سندھ اور پنجاب کی اور ساتھ بلوچستان کی، تو یہ جو تینوں صوبے ہیں یہ مل کر اس ناسور کو ختم کر سکتے ہیں۔